All right. So let us talk about the urban local government. And yesterday we had talked about the panchayati system. So now we will talk about the urban local government. तो जो devolution हुआ था, the devolution that had happened of power, it had gone to the panchayats in the rural area and municipalities in the urban area. Okay. So there is a need to define what is an urban area. Okay, and then there is a need to define what is a rural area. Then only we can say, na, okay, this at this area, the panchayat is ruling, and in this area, the municipality is ruling. Okay, so urban local government, it refers to the governance system of an urban area, which is managed by elected representatives. And this operates within a specific urban area, which is delineated by the state government. So, who has the responsibility of delineating this area? The state government. Very much like your panchayat system, where we saw what that in that panchayat system the state government had the ultimate authority regarding certain provisions, that how much power they needed to give. Okay, what is the demarcation of the rural area? So all these things, this template will apply similarly in the urban area as well. जैसे रूरल एरिया में था उस तरीके से ही अर्बन एरिया में होगा. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इज 74th अमेंडमेंट एक्ट. व्हाट अबाउट द पंचायत सिस्टम और द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? 73rd. So two constitutional amendment had happened. One was 73rd and the other was 74th. Okay. So उसमें 73rd yesterday we have done. Today we will talk about the 74th constitutional amendment. And this provided a structured approach to urban management. Now let us talk about what are the types of urban local government. Urban local government के कितने types हैं? So there are total 8 distinct types of urban local government. We have municipal corporation, municipality, notified area committee, town area committee, a cantonment board, township, port trust, and special purpose agency. So depending upon size, function, and the purpose, okay, depending upon the size, function, and the purpose, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट होते हैं. और इंडिया में कितने हैं? 8 डिस्टिंक्ट टाइप है. ओके, सो सेंट्रल ओवरसाइट जो है, ओके, सेंट्रल ओवरसाइट हम देखते हैं. सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ 3 मिनिस्ट्रीज एट द सेंट्रल लेवल. ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, लेकिन सर्टेन एरियाज ऑल्सो, जो अर्बन एरियाज हैं, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज इट्स ओन अथॉरिटी, इट ऑल्सो हैज इट्स ओन इन्वॉल्वमेंट. तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ जाता है. ओके, सो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं. एसईजेड जो है एक स्टैट्यूटरी एरिया है. देखो, एसईजेड एक्ट होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट. तो उसके थ्रू जो है वहां पर आपका एसईजेड बनता है. तो वहां पर नॉर्मल लॉज नहीं लगते. जो आपके नॉर्मल सिटी के लॉज होते हैं या जो नॉर्मल स्टेट्स के लॉज होते हैं वो वहां पर आपके नहीं लगते हैं. ओके, तो वो जैसे एसईजेड है आपका, तो इट इज मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. may It may be export, it may be, to attract capital, or it may be for a particular one thing. Okay, एक चीज के एक्सपोर्ट के लिए उसको आप बना सकते हो. ओके, तो वहां पर जो है, ओके, एसईजेड जो है उसका गवर्नेंस जो है वो ट्रेडिशनल म्युनिसिपल फ्रेमवर्क में नहीं बैठता है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देर इज अ डेवलपमेंट कमिश्नर. ओके, और वो बंदा जो है, दैट पर्सन इज एलिजिबल, ओके, टू मेक द डिसीजंस इन द एसईजेड. ऑल राइट. ओके, नहीं, देखिए उसमें क्या होता है ना, ये सारी चीजें तो है. ओनली 8 ऑफ दीज, जो हमारा 8 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट है. एसईजेड जो है ना,
उसमें एक ये क्या करते हैं, एसपीवी बनाते हैं। डू यू नो व्हाट इज एन एसपीवी? एसईजेड में एक एसपीवी बनता है, दैट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसमें थ्रू दिस इनका जो है गवर्नेंस होता है। ओके। जो सर्विस प्रोविजन होता है ना, जैसे म्युनिसिपल सर्विसेज जो मिलती है एसईजेड के अंदर, इट इज प्रोवाइडेड थ्रू एन एसपीवी, एंड एक डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, डीसी। नॉट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बट द डेवलपमेंट कमिश्नर। और ये जो होता है डेवलपमेंट कमिश्नर्स, दे बेसिकली ओवरसी द डेवलपमेंट। ऑल राइट। सब एवोल्यूशन ऑफ अर्बन बॉडीज की हम बात करते हैं, तो उसमें 1688 में फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो मद्रास में एस्टैब्लिश हुआ था, फॉलोइंग ए चार्टर विच वाज इशूड इन 1687। देन 1726 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इट वाज एस्टैब्लिश इन बॉम्बे एंड कैलकाटा। 1870 में लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन आया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ local self-government. Then in 1882, we had Lord Ripon's resolution, so which is considered the Magna Carta of local self-government in India. तो ये याद रखिएगा दो चीज, कि लॉर्ड मेयो as well as Lord Ripon, both of them, they had issued resolution pertaining to local self-government in India. Okay, I hope this is clear. And the Royal Commission on Decentralization, it was established in 1907, and it emphasized the importance of local self-government in India. 1919 जो Government of India Act था, जो कि diarchy had introduced in the provinces, it made local self-government a transferred subject. So this was a question in 2022 prelims. 2022 prelims में जो है ये क्वेश्चन आया था। सो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कैसे इंटरट्वाइंड है। इन पॉलिटी सेक्शन यू आर गेटिंग ए आंसर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके। 1924 में कैंटोनमेंट्स एक्ट वाज इनेक्टेड विच प्रोवाइडेड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर कैंटोनमेंट बोर्ड। ओके। सो एक आपने जब यूपीएससी का फॉर्म भरा होगा, एक IDES करके सर्विस होगी, उसका भी आपने नंबरिंग किया होगा, तो दैट इज इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस। और ये इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस जो है, इट इज द कैडर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी कैंटोनमेंट एरिया। तो जब आप IDES में अगर सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी के थ्रू, सो आपका काम होता है टू एग्जीक्यूट द डिफरेंट म्युनिसिपल फंक्शंस विद इन द आर्मी कैंटोनमेंट एरिया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। And the Government of India Act, it declared local self-government a provincial subject, further decentralizing its administration. ओके। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, उसने क्या किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, एंड टोटल कंट्रोल वाज गिवन टू द प्रोविंसेस। आज के डेट में क्या टोटल कंट्रोल स्टेट्स के पास है? डज द स्टेट्स हैव टोटल कंट्रोल ओवर द म्युनिसिपल अफेयर्स? द आंसर इज यस, दे हैव। जैसे पंचायत के ऊपर स्टेट्स का कंट्रोल है, उसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी के ऊपर स्टेट का कंट्रोल है। ओके, ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो 74th अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनैक्टमेंट ईयर था 1992, और ये इट एडेड एज पार्ट 9A। जो 73rd अमेंडमेंट था, व्हाट डिड इट ऐड? जो 73rd अमेंडमेंट था, व्हाट डिड इट ऐड? पार्ट 9। ओके, पार्ट 9, and this was part 9A. Okay, so try to understand, this question had directly come in 2024 prelims. This question had directly come in 2024 prelims, and this was something which was we had discussed in class as well. So part 9A, it is titled the municipalities, and it comprises provisions from articles 243P to 243ZG. ओके, हमने उसमें क्या बात की थी? अगर आप देखेंगे, if you will remember, in 73rd Amendment Act, so what did it added? 73rd Amendment Act, it added what to the Article 243? Any idea?
So उसमें in that we had seen that Article 243 till O was there. 243 A, B, C, D, E, F, G, H, right? Till O. And from here, in this 74th Amendment, we are seeing it is adding from 243P to 243ZG. Okay. So everything regarding your panchayats and municipality, it is present in which article? You will find that in Article 243. And this introduced 12th schedule. If you remember, yesterday we had talked about an 11th schedule, which had 29 functional items. In the similar manner, that was 11th schedule was for the panchayats, and this 12th schedule, okay, this 12th schedule was for the municipalities, and it added 18 functional items. So please remember, 11th schedule added 29 items, and 12th schedule it had 18 functional items. Okay. Yes. So 243 was there. 243 was there, and then the rest of the things are added. I had told you one thing that ये जो है ना कि whenever you see A, B, C, D, it means that this, whenever you see this after an article, it means it has been added later on. इसको बाद में ऐड किया गया है. 243A, we will say that it was added later on. 243B, it was added later on. But if I say 246 only, okay, 246, it was present in the original constitution, but 246C, it was added. नहीं, पार्ट अलग है ना, पार्ट इज अलग, शेड्यूल इज अलग एंड आर्टिकल इज अलग ना. पार्ट इज अलग, ओके, और शेड्यूल इज अलग, ओके. तो ये जो है ना, उसमें पार्ट 9 जो है वो बाद में ऐड किया गया था, विच कंटेन्ड ऑल दीज प्रोविजंस. और फिर देन देर इज पार्ट 9A, okay, part 9A, which contains this 243P to 243ZG. Okay, I hope this is clear. Okay, so whenever you see this, okay, whenever you see uh suppose this PZW, it means it has been added. Okay, it means that it has been added via the Amendment Act. Okay, इनिशियली दैट कंटेन्ड, ओके, इनिशियली जो है वहां पर आपका क्या था, आर्टिकल 243 अगर आप बात करेंगे तो वहां पर ये जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट से एक्टिवेट हुआ है. ये जो है बिफोर दिस, ओके, बिफोर दिस इसमें उसमें कुछ नहीं था. ये जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट, इट एक्टिवेटेड 243 आर्टिकल, और उसके बाद जो है हमें जो है आगे की चीजें मिली थी. आई होप दिस इज क्लियर. या तो इसमें क्या है ना, पार्ट 9A अलग से उन्होंने पार्ट 9A नहीं लिखा था. पार्ट 9 ऐड हुआ फॉर द पंचायत्स, और फिर पार्ट 9A ऐड हुआ आपका 74th अमेंडमेंट में. ओके, और उसके पहले क्या था, इफ यू विल आस्क मी, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. Parts are different, schedules are different, yes or no? Parts are different, schedules are different, and articles are different. Yes. Article 243, this was activated after the 73rd and 74th Amendment. Before the 73rd and 74th Amendment, Article 243, it only contained administration of certain area. It addressed the administration of certain areas. I hope this is clear. Okay. तो उसको जो है 243 को क्या किया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया, और उसको एक्टिवेट कर दिया गया वाया द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट. पहले कुछ और कहता था ये अबाउट सर्टेन एरियाज, इंडिया में जो थोड़े बहुत एरियाज है ना, उनको कैसे गवर्न करेंगे. लेकिन इसको जो है, ओके, इसको जो है इनिशियली हमने क्या देखा कि 243 वाज देयर, एंड इट टॉक्ड अबाउट सर्टेन टेरिटरीज, उसके बारे में, हाउ द टेरिटरीज, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार है,
उसको आप कैसे गवर्न करेंगे उसके बारे में ये कहता है। एंड इट ग्रांटेड द प्रेसिडेंट अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर रीजन्स लाइक अंडमान। तो ये इनिशियली था। ओके। उसके बाद जो था, उसके बाद देयर वाज ए सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1956। और ये जो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसने 243 को हटा दिया। सो 243 डॉर्मेंट हो गया, खत्म हो गया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन इन बाय द 73rd and the 74th amendment act it was revived again, and it was again, उसको जो है हमने वापस से रिवाइव किया। हुआ क्या था फिर से मैं बता देता हूं। इनिशियली किसी एरिया के बारे में बताया था इसमें, इंक्लूडिंग कि प्रेसिडेंट हैज द पावर ओवर अंडमान। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से इसको हटा दिया गया। इसको हटा दिया गया, इफ इट वाज रिमूव्ड इट मेंट दैट दिस पर्टिकुलर थिंग दिस पर्टिकुलर थिंग it became dormant for 35 years. You understand? From 1956, 66, 76, 86, for 35 years, it was dormant. And then finally, in the 73rd and 74th Amendment Act, it was revitalized. इसको जो है डॉर्मेंसी से वापस लाइफ में लाया गया, बट नाउ इट हैड चेंज एंड इट contained provisions of panchayats and municipalities. Now it is fine. I hope this makes it clear. I think you were asking this only, this part only, कि ये 243 before इसका क्या था? Yes, okay. ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि आर्टिकल 243 was repurposed. I think this will be a better word. आर्टिकल 243 was repurposed. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। So 12th schedule आया and 18 functional items were there under article 243W। और यहां पर जो है, it provided constitutional status to municipalities, making state government constitutionally obligated to adopt this new system. What are the types of municipalities under this act, 74th Constitutional Amendment Act? So it says ki every municipality, okay, in every state, what it will be having, three types of municipalities. One will be the Nagar Panchayat, and this will be for transitional areas, transitioning from a rural to an urban area. So what happens is that sometimes a rural area, it starts to develop, it starts to have factories, it starts to generate jobs, it starts to grow. So if it is transitioning from a rural to urban area, so what is going to happen? It will have a Nagar Panchayat, then municipal council for smaller urban area, tier 4, tier 5 cities, and municipal corporation for larger urban area like tier 2 and tier 3 cities. Exception क्या है? An urban area provided with municipal services by an industrial establishment can be declared an industrial township by the governor, negating the need for a municipality. इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? आई थिंक अभिषेक कैन गिव मी एन एग्जाम्पल। आप ही के स्टेट में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जमशेदपुर में टाटा नगर जिसको कहते हैं, वहां पर कौन प्रोवाइड करता है? उसको निगेट मतलब कि जरूरत नहीं है, अब देर इज नो नीड। यस। सो जैसे आपका मान लिया कि एक एरिया है दैट इज अ माइनिंग साइट, और वहां भेल का माइनिंग होता है, BHEL का, और सेल का फैक्ट्री है, और टाटा का फैक्ट्री है, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो उसमें क्या होगा? द टाटा, द सेल, द भेल एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, ONGC, okay, all these areas, they will be providing what? The municipal facilities. So governor can mandate that this particular area is declared as an industrial township and there is no need for a municipality. इसीलिए कहा जाता है that Jamshedpur is cleaner and it is more efficiently organized and it is better in aesthetics than compared to the rest of Jharkhand. Why? Because एक private company है, Tata Group, which is providing the facilities. Okay. I think there was this tweet on Twitter, and Twitter पे जो tweet आया था उसमें ये कहा गया था
that बेंगलोर में हर जगह बाढ़ आई थी, फ्लड वाज देयर इन बैंगलोर, बट ओनली एट वन टाउनशिप, in one industrial township there was no flood. Okay. What is the criteria for defining the urban areas? So governor, he specifies areas as transitional, smaller urban or larger urban area based on the population and its density, revenue which is generated for local administration, percentage of employment in non-agricultural activities, economic importance, and other relevant factors which are deemed fit by the governor. And all members of a municipalities are to be elected directly by the people of the municipal area, which is divided into wards. तो वार्ड पार्षद का बारे में आपने सुना है? In your city there must be ward parshads. Okay, so these are basically wards में divide कर दिया जाता है, और वहां से वार्ड पार्षद, जो हम कहते हैं ना हिंदी में भी, से पार्षदी का चुनाव लड़ा है. सो पार्षदी का जो चुनाव है, दिस इज ward parshad elections, because a city is divided into multiple wards. Okay, and the state legislature may determine the election process for the chairperson of a municipality and the representation of persons with special knowledge in municipal administration, members of parliament and state legislature, and chairperson of other committee. So who has the power to determine the election process? The state legislature. Very similar, in a manner which the state legislature has the power over the panchayat elections. In the similar manner, the state legislature has the power to determine the election process for the chairperson of a municipality and about the representation of persons with special knowledge in municipal administration. So urban planners हो गए, इन सब का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा इन द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज डिटरमाइंड बाय द state legislature. Okay, so try to understand here. If you remember yesterday, I had told you that there were certain voluntary provisions and there were certain compulsory provisions that were there via the 73rd Constitutional Amendment Act. So very similarly here also, these are what? These are voluntary provisions. These are voluntary provisions. Okay. Matlab you have the discretion, the state legislature has the discretion whether they wish or do not wish to continue. Ward committees, it is mandatory for municipality with a population of 3 lakhs or more. So if a municipality has a population of more than 3 lakhs, so then it needs to have a ward committee which consists of one or more wards, and then the state legislature may also constitute additional committees for the efficient functioning of municipalities. The states are required to comply with the act, ensuring the structured and effective functioning of municipalities as units of local government. तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है विच इज इम्पोज्ड वाया व्हाट? द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, और यहां पर स्टेट्स जो हैं, दे मस्ट comply with the act which ensure the structured and effective functioning of municipality, and the act was passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha in December 1992, and it was assented by the president in April 1993. तो यहां थोड़ा पता चल रहा है आपको that how much time it usually takes for the presidential assent. So is it possible for the Lok Sabha to dissolve between this? क्योंकि यहाँ दिसंबर में पास हुआ था, फिर अप्रैल में प्रेसिडेंशियल असेंट फाइनली मिला. सो इट पॉसिबल दैट बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाए? सो देन यहाँ पर क्या प्रेसिडेंट साहब एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते थे? मान लिया कि दिसंबर में पास करने के बाद लोकसभा वुड हैव बीन, ये तो एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते थे. द आंसर इज यस. इफ द न्यू गवर्नमेंट that would have formed, it would have advised that okay, president to use the absolute veto, then yes, the answer is yes, they could have. Okay, but ये सही है कि नहीं? What I just said, is it right or wrong? I said something. No, not ethically. हमने जैसे बात कर ली कि एसेंट में इतना टाइम लगता है,
ओके, और प्रेसिडेंट साहब के एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, दे कैन यूज द एब्सोल्यूट वीटो, बट आई एम आस्किंग इन दिस पर्टिकुलर केस कैन ही यूज्ड? कुछ है, सी ए ए था ये। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आप मना कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आप मना कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट मस्ट असेंट, है कि नहीं? सीएए में प्रेसिडेंट मस्ट असेंट। और मनी बिल में हमने क्या पढ़ा था? मनी बिल में थियोरेटिकली ही हैज टू ऑप्शन, दैट इज गिव असेंट और withhold assent, but he cannot send it back for reconsideration. Or withhold assent is only possible if the government falls and the new government comes in and tells the president to not give the absolute veto. हमने एक चीज यहां पर नहीं देखा कि ये सीएए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ओके, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, आई होप नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है अबाउट द प्रेसिडेंशियल असेंट? ओके, reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe. The seats are reserved in every municipality in proportion to their population in the municipal area. देखिए, कुछ states में tribal population is really low, especially in the urban areas also. The tribals, they generally are more found in the rural areas. तो हो सकता है कि एसटी का नंबर थोड़ा कम रहे compared to the एससी. Then for women, 1/3 of the total number of seats will be reserved, including for SC and ST women. तो वर्टिकल रिजर्वेशन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। मतलब आउट ऑफ द टोटल चंक 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व्ड, बट इसमें से भी एससी के सीट्स में से 1/3 विल बी रिजर्व फॉर एससी विमेन एंड एसटी के सीट में से 1/3 विल बी रिजर्व फॉर एसटी विमेन। तो हिंदी में वी से सुरक्षित, वेन एवर यू लुक एट द सीट, ओके, तो ब्रैकेट में सुरक्षित या एससी या एसटी लिखा रहेगा, मतलब वहां पर सिर्फ एसटी लड़ सकते हैं। ओके, and the state legislature may provide for the reservation of seats or offices of chairperson in municipality in favor of backward class. तो ओबीसीज को भी दे सकते हैं, बट is this a compulsory or a voluntary provision? This is totally voluntary provision and it differs from state to state. ओबीसीज को जो रिजर्वेशन देना है तो वो हर स्टेट में डिफरेंट होता है। ओके, duration of reservation, so reservation of seats and reservation of offices of chairperson for SC and ST will cease after the period specified in Article 334, which is currently 80 years until 2030. So 2030 में फिर इसको बढ़ा देंगे 10 ईयर, तो हर 10 साल में जो है उसको हम 10 साल बढ़ाते जाते हैं। एवरी 10 years we keep on increasing it. Duration of municipality 5 years होगा, but they can be dissolved before the completion of their term, just like the panchayats. And fresh elections to constitute a municipality must be completed before the expiry of 5 years, or in case of dissolution, before 6 months from the date of dissolution. A municipality which is constituted upon the dissolution of previous municipality will only continue for the remainder of the term. Very, very similar to whatever we read in the panchayat system. That panchayats, what they will have, 5 year term, they can be dissolved before, and if they are dissolved within 6 months, the new election has to take place. But what if they are dissolved and the rest of the term was less than 6 months? What if they are dissolved and the rest of the term that was left for the dissolved municipality was less than 6 months? It means a new election will take place, not a election for, ओके, मतलब उसमें जो है आपको म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन की जरूरत अब नहीं है। अब जो नॉर्मल इलेक्शन होने वाले थे 5 ईयर के एक्सपायरी के लिए, वही इलेक्शंस होंगे अगर 6 महीने से कम है आफ्टर डिसोल्यूशन टू कंप्लीट द टर्म। लेकिन मान लिया कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में डिसॉल्व कर दिया म्यूनिसिपैलिटी को, सो विल देयर बी एन इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years? The answer is yes, it will happen. But suppose 4 years
and 8 months already was completed for the term, and only 4 months was left, and the municipality was dissolved. So, does it necessitate a new election for 4 months, or a normal election will happen at the end of 5 years? Then the normal election will happen because it is less than 6 months. I hope this is clear. Very similar to पंचायत, जैसे कल पंचायत में पढ़ा था, सिमिलर वही चीज है यहाँ पर. और जो भी नया आएगा म्यूनिसिपैलिटी, एनी न्यू म्यूनिसिपैलिटी दैट विल बी कमिंग हियर, सो दे विल बी only serving for the remainder of the term. They will not serve the entire 5 years. Okay, suppose 1 year is left, so they will serve only 1 year. Suppose the last municipality it served 4 years, and then the new municipality will serve 1 year, and then fresh election for the next 5 years will take place. Okay. Disqualification for membership. So a person can be disqualified for being chosen as or for being a member of municipality if disqualified under state election law. तो इसमें क्या लॉ होता है, बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग लॉ लेके आते हैं, जैसे 2 बच्चे वाला, 2 kids. इफ यू आर हैविंग मोर देन 2 kids, देन यू आर basically disqualified. Okay. Then age requirement, no person shall be disqualified for being under 25 if they have attained the age of 21. So it means to stand in the panchayat election and to stand in the municipality election, you require 21 years. Okay, you require to be 21 years. And the question of disqualification are referred to an authority determined by state legislature. So it is done through petitions. एमपी एमएलए का कौन डिसाइड करता है? एमपी एमएलए का अथॉरिटी किसके पास है टू डिस्कस द इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन? इट इज विद द हाई कोर्ट. ओके, इट इज विद द हाई कोर्ट. Whereas for the panchayat and municipality, the issue of disqualification, it will come to the state legislature via the route of a petition or any other authority. Okay, or any other authority which is determined by the state legislature. I hope this is clear. Okay. Yeah, so I think this is part D of the first schedule, है ना? So chief commissioner authority president it is talking about. So original 243 जो है, this is talking about areas like Andaman and Nicobar. Chief commissioner जहां पर रहता है, president can rule. Yes. All right. So question of disqualification are referred to an authority determined by the state legislature. उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पावर रहता है सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल का. सो दो चीजें बनी थी वाया द 73rd and 74th Amendment Act. Two new offices were created: the State Election Commission and the State Finance Commission and the State Public Service Commission. ये भी क्रिएट हुआ था 73rd Amendment Act से. स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या ये तीनों क्रिएट हुआ था? द आंसर इज नो. SPSC was already there. It is a constitutional body. It was already there. SEC and SFC was created. The State Election Commission and the State Finance Commission. Okay. So state legislature may make provision regarding all matters relating to elections to the municipality. Powers and functions की हम बात करते हैं. So state legislature, it may empower municipality to prepare and implement plans for economic development and social justice, as well as take responsibility for the 18 matters which are listed in the 12th schedule, such as urban planning, regulation of land use, roads and bridges, water supply, public health, sanitation, and fire services. Self-government, the provision aims to make municipalities self-governing institutions capable of managing local affairs autonomously. Finances की अगर हम बात करें, सो म्यूनिसिपैलिटी जो है, इट मे बी ऑथराइज. सो मे बी ऑथराइज, देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है यहाँ पर.
मे बी ऑथराइज जो है, इसका मतलब ये है दैट स्टेट लेजिस्लेचर का डिस्क्रेशन है कितना पावर देना चाहता है। ओके, द स्टेट लेजिस्लेचर मे अलाउ फॉर ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द स्टेट्स कंसोलिडेटेड फंड। तो मे अलाउ कितना अलाउ करता है वो स्टेट के ऊपर है। इट इज टोटली अप टू द स्टेट हाउ मच मनी दे वांट टू गिव टू द म्युनिसिपैलिटी। सम स्टेट्स दे गिव मोर, some states they give less. Finance Commission. So a finance commission is tasked with reviewing the financial positions of municipality every 5 years and making recommendations regarding distribution of tax proceeds between the state and municipality. तो फाइनल अगर आप देखिएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या रहता है? स्टेट जो स्टेट पूल है उससे म्यूनिसिपैलिटीज को कितना पैसा जाएगा और पंचायत को कितना पैसा जाएगा। सो सपोज देर इज अ स्टेट which has more urban area compared to rural area, so it means the panchayats will be getting the higher share, whereas municipality will be getting the lower share. Okay, suppose one state has more urban area, it means municipality को ज्यादा पैसा मिलेगा। one state has more rural areas, पंचायत को ज्यादा पैसा मिलेगा। Okay, I hope this is clear. So taxes that could be assigned to municipality for collection, that is also seen by the State Finance Commission, and any grants in aid from the state's consolidated fund. उसके साथ साथ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन विल आल्सो हैव रिकमेंडेटरी पावर। ओके, रिकमेंडेशन का जो पावर है दिया जाएगा। यस, दिल्ली के फार्मर्स जो हैं, जो दिल्ली में भी फार्मिंग होती है। there are certain rural areas within the national capital territory NCT of Delhi, so not much is given to them. Okay, दिल्ली जो है अर्बन एरिया की तरह जानी जाती है ना। ओके, ऑडिट एंड अकाउंट, तो स्टेट लेजिस्लेचर में रेगुलेट द मेंटेनेंस ऑफ म्युनिसिपल अकाउंट्स। और एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी जो है, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि एप्लीकेबल बना सकते हैं यूनियन टेरिटरी में, एंड ही मेक एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस। And in 2001, certain provisions, Article 243ZD and 243ZE, related to district and metropolitan planning, were directed not to apply to National Capital Territory of Delhi. Why? देखिए, एनसीटी ऑफ दिल्ली में ना न्यू दिल्ली एरिया भी आता है, विच इज द नेशनल कैपिटल, एंड न्यू दिल्ली एरिया इज अंडर whom? न्यू दिल्ली एरिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट द बैलेंस इज मेंटेन्ड। अगर 100% पावर दे दिया जाए आपके स्टेट गवर्नमेंट को ओवर द नेशनल कैपिटल एरियाज, न्यू दिल्ली एरिया, सो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। ओके, so the act does not apply to scheduled areas and tribal areas in certain states, with parliament having the power to extend these provisions with specific exception. तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट को शेड्यूल एरियाज या ट्राइबल एरियाज में लगा सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा पार्लियामेंट ने किया है? डिड द पार्लियामेंट एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी? यस, वाया द पैसा। ओके, वाया द पैसा। ओके, पैसा एक्ट आपको याद होगा, पंचायत जो एक्सटेंशन, ओके, पंचायत का जो पावर है उसको एक्सटेंड करने के लिए इन द शेड्यूल्ड एरियाज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो शेड्यूल्ड एरियाज में कर सकती है। तो विच शेड्यूल्ड एरिया, फिफ्थ और सिक्स्थ? पैसा जो है किसको केटर करता है? इट इज केटरिंग टू द फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। This is catering to what? This is catering to the fifth scheduled areas. Okay. I hope this is clear. No, no, no. That is different. 371A to 371G जो है आपका, that is what? That is special provision with respect to certain states. वो डिफरेंट हो गया। वो जो है डिफरेंट हो गया, वो नागालैंड वगैरह मणिपुर के लिए हो जाता है। फिर आपका आंध्र प्रदेश में क्या पब्लिक जो एग्जाम्स होंगे उसमें सर्टेन पोजीशंस कैन बी रिजर्व बेस्ड ऑन रेसिडेंस, वो डिफरेंट है। शेड्यूल्ड एरियाज फिफ्थ शेड्यूल अलग है दोस्त, दैट इज रिलेटेड टू द ट्राइबल मेजोरिटी एरियाज इन 10 स्टेट्स। याद है, हमने डिफरेंट है, ये 10 स्टेट्स की बात हमने की थी। ओके, ये जो है बेसिकली हमने 10 स्टेट्स की बात की थी, दैट इज डिफरेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यस,
देखिए न्यू दिल्ली जो है ना, न्यू दिल्ली वो नेशनल कैपिटल है। ओके, वो नेशनल कैपिटल है और वो दिल्ली के अंदर आता है, एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, तो वो ओके, वो डुअल पर्पस, ओके डुअल पर्पस होता है कि न्यू दिल्ली जो है ना, वो इट इज पार्ट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो वहीं से केजरीवाल साहब और परवेश वर्मा लड़े थे ना, और आपके दीक्षित साहब लड़े थे। ओके, है ना। तो न्यू दिल्ली जो है, वहां एनसीटी ऑफ दिल्ली में टोटल कितने, देर आर टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स विद इन न्यू दिल्ली। 11 डिस्ट्रिक्ट में से एक है एनसीटी, लेकिन एज वेल एज दिस एनसीटी ऑफ दिल्ली का पार्ट है, बट ये जो है, दिस इज बेसिकली ऑल्सो द सीट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो व्हाट, द सीट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो ये जो 35 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है, ये है क्या, ये जो है आपका दो दो चीज का काम करता है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली, एज वेल एज इट इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यस। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में। सो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इट्स अ क्रूशियल कंपोनेंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो है क्या करता है, ये कंसोलिडेट करता है द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत्स एंड द म्युनिसिपैलिटी इनटू ए कोहेसिव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान। ये समझ में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में, इन अ डिस्ट्रिक्ट देयर विल बी अर्बन एरियाज which will be the district capital, and some other urban areas, and then there will be rural areas. एक पूरा डिस्ट्रिक्ट 100% अर्बन तो नहीं हो सकता ना। A certain district cannot be 100% urban or 100% rural. Okay, so generally what we have a mixture, okay, of urban and rural areas. So urban local bodies और रूरल लोकल बॉडीज के जो प्लान्स हैं, उसको ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये एक कोहेसिव वे में कंबाइन करके और डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करता है। सो एवरी स्टेट इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस द कॉम्पोजिशन ऑफ द डीपीसी। So what will be the composition? Who will be sitting as the chairman? Who will be there? What will be the representation? ये सारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास अधिकार है, and this ensures that 4/5 of its members are elected from among the elected members of the district panchayats and municipalities within the district. Okay, so इसमें जो members होंगे वो 4/5 member, they will be elected from the elected members of the district panchayat and municipality। मतलब क्या मैं कह सकता हूं that these will be indirectly elected from the members who are directly elected। डीपीसी के मेंबर कौन होंगे, दे विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। ऑलराइट, अभी तक यूपीएससी इतना डेप्थ में नहीं गया है व्हेन इट कम्स टू द अर्बन लोकल गवर्नेंस एंड द पंचायती राज। ऊपर ऊपर से इस साल भी इसने सिर्फ पूछा पार्ट 9 और पार्ट 9A किसका पार्ट है, लेकिन आपको हाँ, कभी पता नहीं है कब यूपीएससी एक टफ क्वेश्चन देने के लिए आगे आ जाएगा। ओके, so the proportion of members from rural and urban areas should reflect the rural-urban population ratio within the district. See, certain districts are rural heavy. What does this mean? कि 80% area is rural, 20% area is urban. कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जहां पर 60% अर्बन एरिया है, 40% रूरल एरिया, जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए उस टाइप के। तो जो प्रोपोर्शन होगा डीपीसी के मेंबर्स का, इट शुड रिफ्लेक्ट दैट रियलिटी। इफ इट इज 90% रूरल, सो 90% ऑफ द मेंबर्स शुड कम फ्रॉम द पंचायत्स and 10% from the municipality. If it is 60% municipal urban, so 60% of the members should come from the municipality. So इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। The manner of election of DPC member is defined by the state legislature, and DPC जो है it is tasked with consolidating plans from panchayats and municipality। तो consolidate करता है रूरल एरिया का प्लान,
और अर्बन एरिया का प्लान, and then it tries to develop the district as a single cohesive unit. Okay. And integration of spatial planning, shared use of water and other physical and natural resources, joint development of infrastructure, environmental conservation, ये सारा काम जो है इनका होता है। प्लानिंग प्रोसेस, सो ये जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान अलग होता है, and this is determined by the DPC, and they should consider matters of common interest between panchayats and municipality। जैसे रोड हो गया, सो रोड इज समथिंग विच इज कॉमन, कि अगर रूरल एरिया से निकलेगा तो अर्बन एरियाज कनेक्ट होंगे, दो या उससे ज्यादा अर्बन एरियाज क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो बीच में रूरल एरिया से कैसे जाएगा। ओके, सो ये सारी चीजें जो है प्लानिंग प्रोसेस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड DPC is required to consult with institution or organization as specified by the governor। तो गवर्नर साहब जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से बात करिए, ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन से बात करिए, या दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू टॉक टू देम, so they will have to, the DPC will have to talk to them। And once formulated, the chairperson of the district planning committee forwards the development plan to the state government for approval and implementation। ओके, सो डीपीसी का जो प्लान है वो किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। सो डू यू अंडरस्टैंड, द डीपीसी इज ओनली अ रिकमेंडेटरी बॉडी, उसका प्लान जो है अल्टीमेटली किसके पास है, पावर, द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर। ओके, डीपीसी का जो पावर है किसके पास है, द स्टेट गवर्नमेंट, इट हैज द पावर। ऑलराइट, देन कम्स द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी। A metropolitan planning committee is for the planning within the metropolitan areas। Okay, so what is the difference between DPC and MPC, समझ में आ रहा है? मेट्रोपॉलिटन जो आपका प्लानिंग कमेटी है वो किसको फोकस करेगा, अर्बन एरियाज पे फोकस करेगा, अर्बन एरियाज पे, वेराज द डिस्ट्रिक्ट जो प्लानिंग कमेटी है वो किस पे फोकस करेगा, मिक्स ऑफ बोथ, बिकॉज इन अ डिस्ट्रिक्ट you have both urban and rural areas, whereas in MPC, metropolitan planning committee, what do you have, you have urban areas। Okay, okay, I hope this is clear। Yes, both of them they are designed for decentralized planning। but ये जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया कब होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया तब होगा जब 10 लाख से ज्यादा एक एरिया का पॉपुलेशन हो जाता है। व्हेन 10 लाख से ऊपर जैसे ही पॉपुलेशन जाएगा तो वो अर्बन स्पेसिफिक प्लानिंग हैज टू बी देयर। क्या मान लिया हम ऐसे कर सकते हैं, मुंबई जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है, या मुंबई को क्लब कर दें विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स, और उसका प्लान एक नॉर्मल प्लान बनाए। मुंबई इज अ बिहीमथ ना, करोड्स ऑफ पीपल आर लिविंग देयर, इट रिक्वायर इट्स ओन प्लानिंग, सो देयर एमपीसी इज नीडेड। ओके, so the state legislature is responsible for defining the composition of the MPC, and the composition and election process of committee members is decided by the state legislature। Representation from the central government is also there। Why central government? Because certain projects like smart city, महुआ का जो project है Ministry of Housing Affairs, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो गया, अमृत योजना हो गया, अटल योजना, समथिंग लाइक दिस, they will have to be on board। Okay, they will have to be on board। Okay, then state government ho gaya and other organizations will be there, and election procedures for the committee's chairperson, to ye state government ki responsibility hai, and the state government has all the power here। Okay, 2/3 of MPC members should be elected by and from the elected members of municipalities and chairpersons of panchayats within the metropolitan area। Okay, and the representation within the MPC should be reflecting the population ratio of municipalities and panchayats in the metropolitan area। तो ऐसा भी होता है ना कि in a particular metropolitan area we also have certain rural areas जहां पर अभी भी जो है, okay, जहां पर अभी भी जो है पंचायत हो रहा है, मे बी दे आर मोर रूरल कंपेयर टू द होल अर्बन सेटअप। तो अगर ऐसी बात है
तो वहां पर पंचायत का इलेक्शंस होगा और पंचायत के मेंबर्स दे विल बी इंक्लूडेड इन द एमपीसी सो दैट दे कैन ग्रो विद द मेट्रोपॉलिटन एरिया. बट इन जनरल डज इट हैपन? In general, it does not happen. Metropolitan area in general, they basically come within a strictly urban area. Okay. लेकिन ऐसा कभी कभार होता है that in a metropolitan area, which is, in a transitionary phase, मतलब अभी जस्ट बना है metropolitan area, proper 100% urban नहीं है. Still within this metropolitan region, there are सर्टेन पंचायत एरियाज, तो उनको भी साथ लेके चलना होता है. यहां पर हमने देखा 2/3 of MPC member should be elected by the elected members of municipalities and chairpersons of panchayat. डीपीसी में कितना था? डीपीसी में कितना था? 4/5. बहुत बढ़िया. इट विल बी 4/5. ओके. इट इज इट जस्ट डिसाइडेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन? सो यहां पर हमने क्या देखा बेसिकली कि एक ऐसा रीजन है जिसका पॉपुलेशन, ओके, अर्बन रीजन है, उसका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो गया. ओके. तो मेट्रोपॉलिटन का क्राइटेरिया सिर्फ पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, ऐसा तो डिस्ट्रिक्ट को ही मेट्रोपॉलिटन आप कह सकते हैं. बट नॉट ओनली दिस, बट एन अर्बन एरिया जब उसका, ओके, अर्बन एरिया 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तब जो है हम उसको क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया वी कैन कॉल इट. ओके. सो ये कहाँ दिया हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया का डेफिनेशन? 243 पी. ओके. आर्टिकल 243 पी में अगर आप देखेंगे तो वहां पर अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद वो जो एरिया है, ओके, वो जो पर्टिकुलर एरिया है, उसमें सर्टन अदर कॉम्पोजिशंस भी देखा जाता है कि अगर उसमें दो या उससे ज्यादा म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उसमें एक या उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कंटिगुअस एरियाज आर ऑल्सो देयर, मतलब दो म्यूनिसिपैलिटी के बीच में एक पंचायत आ गया. ओके. एंड देन उसको नोटिफाई करना, ये सारी चीजें जो है मिलके आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाती है. Functions and planning process. So Metropolitan is charged with, planning committee is charged with preparing a draft plan which coordinates spatial planning, integrated infrastructure development, alignment with the objectives and priority of the government, and consideration of investments and resources from government agencies. Okay. Acha, tell me one thing. Have we studied basic structure in class? क्लास में हमने बेसिक स्ट्रक्चर की पढ़ाई की है. हैव वी स्टडीड बेसिक स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली? ऐसे तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली कभी पढ़ा है हमने? एक बार चेक कर लेना. अगर नहीं पढ़ा है, आई विल ऑल्सो चेक. नहीं पढ़ा है तो आज ही खत्म कर लेंगे उसको. ऐसे तो हमने बता दिया, एवरीबडी नोज व्हाट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. वो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में. उसको समझा भी दिया 4-5 बार. लेकिन आई थिंक एक स्पेसिफिक क्लास जो है, अगर वो नहीं हुई है तो वो आज ले लेंगे. ओके. एमपीसी मस्ट कंसल्ट विद स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन एज डायरेक्टेड बाय द गवर्नर. वेरी सिमिलर टू डीपीसी. एमपीसी का भी काम सिमिलर है, बट अलग अलग जगह पे ये लगता है. ओके. ओके. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है ना? सुप्रीम कोर्ट हैज बीन डन इन क्लास. क्या बात कर रहे हैं? एसएलपी वगैरह, कंप्लीट जस्टिस, कौन से किस चीज का पार्ट हो गया? सुप्रीम कोर्ट की पार्ट होगी ना. ओके. उसी में पढ़ा है. सुप्रीम कोर्ट वी हैव डन. ओके. सुप्रीम बेसिक स्ट्रक्चर एज अ सब्जेक्ट, मैं वो नहीं कह रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं. मैं ये बोल रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर क्लास में एज अ क्लास हुआ है कि नहीं, सो दैट यू कैन गो एंड आंसर इट इन द एग्जामिनेशन. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. ओके. जस्ट चेक इट वंस. मैं भी चेक कर लूंगा. अगर नहीं होगा तो ओके, नहीं होगा तो हम लोग पढ़ लेंगे. सो कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन म्यूनिसिपैलिटीज. So existing state laws related to municipalities were to continue for 1 year from the commencement of the act. Same thing in पंचायत. हमने कल पढ़ा था 1 साल मिलेगा आपको अडॉप्ट करने के लिए पंचायती सिस्टम. वेरी सिमिलरली वी विल गेट 1 year for the new municipal system for the states would have gotten, and by June 1, 1994 they would have to adopt it. अगर किसी स्टेट में एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपैलिटी है, जैसे एग्जिस्टिंग पंचायत था, so it could continue uh, until the expiry of their term, and then a new panchayat based on the term of the 73rd Amendment Act, and a new municipality based on the term of the 74th Constitutional Amendment Act. ये जो है आपका हो जाए. ओके.
ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हैज बीन डन, क्लास 27 इज बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, वंडरफुल। तो चलिए, आई थिंक दैट्स सेटल्ड। आई आई वाज थिंकिंग कि हमने नहीं किया है, तो वो कर कर लेना चाहिए था, बट ऑलरेडी वी हैव डन। ओके, सो दैट्स गुड। ओके, हैंड आउट है भी, आई हैव सेंड अ हैंड आउट एज वेल, राइट? गुड गुड। ठीक है। ओके, बढ़िया। ठीक है। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। So, Act restricts courts from questioning the validity of laws concerning the delimitation of constituency or the allotment of seat. Very similar in Panchayat. The same thing happens here. Panchayat elections you cannot uh, inquire in court. The very similar municipal elections जो है 100% purview of the state government. Okay, and it specifies that election to municipality can only be challenged through an election petition presented to an authority in a manner prescribed by the state legislature. तो इलेक्शन चैलेंज एमपी एमएलए का कहाँ करेंगे आप? एमपी एमएलए के इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आया तो हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में प्रॉब्लम आएगी तो हम पिटिशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, स्टेट लेजिस्लेचर को देंगे। The High Court will not have interference power. Okay, so keep this in mind. 12 schedule में कितने items हैं? 18 functional areas for the municipality. 11 schedule में कितने थे? 29. Okay. Urban and town planning, land use regulation, economic and social development planning, roads and bridges, water supply, public health, sanitation and waste management, fire service, urban forestry and environmental protection, support for weaker section, slum improvement and upgrade, urban poverty alleviation, urban amenities, promotion of cultural, educational and aesthetic aspect, management of burial and cremation ground. This is also important. आपने देखा है वो every greater Noida, Delhi, all of them have mukti dhams. They have crematoriums. They have that electric crematoriums. इलेक्टोरियल इलेक्टोरियल नहीं बोल रहा, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम होते हैं वहां पर। जैसे बॉडी को अगर आपको लकड़ी से नहीं जलाना है, सो उसमें जो है इलेक्ट्रिक यूज करके आप उसको जला सकते हैं। ओके, सो ये जो है ना, दिस पर्टिकुलर थिंग, ये किसके अंदर आता है? ये किसके अंदर आता है? ये आपका म्युनिसिपैलिटी के परव्यू में आता है। देन एनिमल वेलफेयर एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, vital statistics, public amenities, regulation of slaughterhouse and tanneries. Okay. So types of urban government, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं, दे गवर्न लार्ज सिटीज लाइक, सबसे पहले हम बात करें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। सो दे गवर्न लार्ज सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, हैदराबाद, बैंगलोर एक्सेट्रा, जिसमें आपके और भी इमर्जिंग सिटीज जो हैं आपके आ जाते हैं। एंड इट कंप्राइजेज ए काउंसिल विच इज द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ए स्टैंडिंग कमिटी फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड अ म्यूनिसिपल कमिश्नर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन होता है? काउंसिल तो समझ में आ गया, पीपल यू नो हु आर हु हैव कम आफ्टर इलेक्शंस। स्टैंडिंग कमिटी भी समझ में आ गया। लेकिन म्यूनिसिपल कमिश्नर आईएएस होता है जनरली। ओके, ऑलराइट। टैनरीज लेदर वाला होता है जो कानपुर वगैरह में आपको मिल जाएगा, है ना? जब दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ, these are the major sources of, okay, pollution in Kanpur. So led by a mayor, the municipal corporation is led by a mayor, but does the mayor has any power? Does the mayor has any power? The answer is no. Okay. मेयर जो नहीं, जुरिस्डिक्शन एमपी एमएलए का कैसे हो गया? एमपी एंड एमएलए का जुरिस्डिक्शन जो है इज इन लेजिस्लेशन, स्टेट लेवल लेजिस्लेशन एंड कंट्री लेवल लेजिस्लेशन। वो लेजिस्लेटिव का पावर है। म्युनिसिपल किसका पार्ट हो गया? म्युनिसिपैलिटी जो है वो आप देखिएगा तो वो डिफरेंट चीज हो गई। एमपी एमएलए का काम क्या है? लेजिस्लेट करना, रूल्स बनाना, लॉज बनाना। क्या उसको डेवलपमेंट कराना है? उसको डेवलपमेंट कराना उसका काम है कि लॉ बनाना फॉर डेवलपमेंट, लॉ बनाना फॉर डेवलपमेंट, और बातों को उठाना। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसको देखना। एमपी लैड में किसका रहता है? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी।
डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सिर्फ जो है रिकमेंड कर सकते हैं एमपीज। एमपी लैड जो है वहां पर उसमें एमपीज दे कैन नॉट डू ऑन देयर ओन। दे कैन ओनली टेल द डीएम कि कहाँ पर काम करवाना है, और वो डीएम फिर काम कराता है। ओके, सो म्यूनिसिपैलिटी इट मैनेजेस टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज, एंड स्ट्रक्चर जो है म्यूनिसिपैलिटी का इट इज स्मॉलर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज फॉर लार्ज सिटीज, म्यूनिसिपैलिटी इज फॉर टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज। So it is similar to municipal corporation with a council, standing committee, and a chief executive officer. And it is headed by a president chairman who plays a significant role in municipal administration. Then you have a notified area committee, and it administers fast developing towns or important areas who are not yet qualifying as municipalities. मतलब notified है. What are these? नोटिफाइड है कि ठीक है, ये जो एरिया है ना इसको हम देख रहे हैं, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस कैन बी ए पोटेंशियल टाउन और सिटी इन द फ्यूचर, बट अभी भी जो है इट हैज नॉट गॉटन टू ए पॉइंट कि वहां पर जो है आपको इट विल क्वालिफाई एज ए म्यूनिसिपैलिटी। ओके, तो इसके लिए जो है, ओके, इसके लिए जो है ऐसे एरियाज होते हैं नोटिफाइड एरिया जहां पर हमें रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो वहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर कर देती है। और दीज आर नॉट इलेक्टेड बॉडी, प्लीज रिमेंबर, दीज आर नॉमिनेटेड बॉडी। नोटिफाइड एरिया कमिटी में नॉमिनेटेड बॉडीज होते हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड। एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय whom? They are nominated by the state government. ओके, एंड यहां पर किसी भी टाइप का जो है आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, ओनली नॉमिनेशन, डायरेक्ट नॉमिनेशन, बिकॉज दीज आर ट्रांजिशनरी एरियाज। दे हैव ऑल ऑफ अ सडन दे हैव गॉट दिस स्टेटस। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल हो सकता है माइनिंग। माइनिंग एरियाज में कह सकता हूं, अचानक से कोई माइनिंग एरिया मिला और आसपास के गांव जो हैं वहां पर बड़े से, नहीं, जमशेदपुर नहीं हो सकता है नोटिफाइड एरिया। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, हीराकुड। हीराकुड जो है, हीराकुड डैम सुना है आपने? हीराकुड डैम, तो हीराकुड जो डैम है ना, वो इतना बड़ा हो गया था उसका ऑपरेशन कि वहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स, वर्कर्स, ये सारे लोग रहने लगे थे अचानक से। तो हीराकुड जो है इट वाज नोटिफाइड एज ए नोटिफाइड एरिया। ओके, और उसके बाद जो है बाद में उसको नोटिफाई, जब वो बहुत बड़ा होने लगा तो उसको संबलपुर में, संबलपुर म्यूनिसिपैलिटी के साथ मर्ज कर दिया गया। डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज अ नोटिफाइड एरिया कमिटी? ओके, देन कम्स टाउन एरिया कमिटी। सो व्हाट इज टाउन एरिया कमिटी? वेरी सिमिलर। टाउन एरिया कमिटी जो है स्मॉल टाउन्स और ये लिमिटेड सिविक फंक्शंस हैंडल करता है। ओके, दिस हैंडल्स व्हाट? दिस हैंडल्स लिमिटेड सिविक फंक्शन इन स्मॉलर टाउन्स। और इसका कॉम्पोजिशन कैसा है? इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और अ मिक्स ऑफ बोथ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द स्टेट लेजिस्लेचर विल थिंक अबाउट दिस। ओके, तो यहां पर जो है आप अगर देख रहे हैं, यू आर सीइंग दिस वन थिंग दैट notified area is nominated or elected. It is entirely nominated, whereas town area committee may be mixed, some nomination, some election। entirely वहां पर आप नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, या वहां पर आप जो है मेजॉरिटी इलेक्शन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द स्टेट लेजिस्लेचर डीम्स इट फिट। ओके, तो ये टाउन एरिया कमिटी किसके लिए होता है? ऐसे स्मॉल टाउन्स विच आर स्टिल नॉट qualifying for the status of municipalities. Okay, I hope this is clear. Then comes cantonment board. So cantonment board provides municipal services in a military cantonment, and ये partly elected होते हैं, partly nominated होते हैं under the Cantonments Act 2006। और कौन एडमिनिस्टर करता है इनको? बहुत ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो करती है। आईडीईएस ऑफिसर, अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। सो ये दीज पीपल दे आर हेयर इन द कैंटोनमेंट बोर्ड, और इसीलिए कहा जाता है द आईडीईएस
इज द आईएएस ऑफ द कैंटोनमेंट। क्या ये बात कहनी सही है? IDES इज द IAS ऑफ द कैंटोनमेंट? द आंसर इज नो। हु इज द हेड? हु इज द हेड ऑफ द कैंटोनमेंट? द सीओ, द मिलिट्री सीओ। डोंट बी सॉरी, कोई बात नहीं। ओके, द मिलिट्री सीओ, द कर्नल। छोटा कैंटोनमेंट है तो कर्नल होगा, बड़ा कैंटोनमेंट है तो ब्रिगेडियर होगा। ओके, अगर छोटा कैंटोनमेंट है तो कर्नल विल बी द हेड। ओके, ऑलराइट। छोटा कैंटोनमेंट जो है तो कर्नल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, बड़ा कैंटोनमेंट है तो ब्रिगेडियर या इवन आई थिंक मेजर जनरल नहीं होते। मेजर जनरल फिर बहुत सीनियर हो जाता है। ब्रिगेडियर तक जो है, आई हैव हर्ड दैट बिग कैंटोनमेंट्स आर हेडेड बाय ब्रिगेडियर। IDES जो है उसका काम होता है लाइजन करना। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ऑफिसर का काम है टेंडर वगैरह नोटिफाई करना। जैसे कोई दीवार गिर गई कैंटोनमेंट के अंदर, उसको बनाना। कहीं पर आपका ड्रेनेज पाइप फट गया, उसको बनाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये कौन देखता है? IDES देखता है। डोंट बी इन दिस डिसोल्यूशन कि IAS है कैंटोनमेंट का, बिकॉज द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विद इन अ कैंटोनमेंट इज द CEO, द कमांडिंग ऑफिसर, आइदर अ ब्रिगेडियर रैंक और द, यस, लाइजन। यस, लाइजनिंग करना होता है ना कि आप जो है हमसे बात करिए, मैं फिर म्यूनिसिपैलिटी से बात करूंगा, बिकॉज पानी कहीं से आएगा ना। पानी तो आर्मी खुद अपना बनाएगी नहीं, पानी तो आपको सिटी से लेना पड़ेगा इन द कैंटोनमेंट एरिया। तो आईडीईएस जो है वो क्या करता है? बिटवीन द मिलिट्री अथॉरिटी एंड द सिविल अथॉरिटी एक तरीके का ब्रिज की तरह काम करता है। ओके, टाउनशिप क्या होता है? टाउनशिप जो है उस केस में हम देखते हैं कि इट इज एस्टैब्लिश बाय लार्ज एंटरप्राइजेस। दे मे बी PSUs, दे मे बी, जमशेदपुर इज अ वेरी गुड एग्जांपल। दे मे बी PSUs और दे मे बी लार्ज प्राइवेट कंपनीज। तो देखिए क्या होता है कि अब जैसे अडानी ने कहीं पर माइनिंग सिटी बनाया। ओके, झारसुगुड़ा कैन बी अ गुड एग्जांपल। यस, झारसुगुड़ा इज अ गुड एग्जांपल। अब आज की डेट में झारसुगुड़ा में देर आर एरोप्लेन्स, मतलब एयरपोर्ट्स खुल गए। इट वाज अ स्लीपी टाउन सम टाइम्स बैक, बट इतना वहां पर माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है दैट इट हैज गॉट वेरी डेवलप्ड नाउ। तो ये क्यों हुआ है? एक सिंगल चीज होती है, जैसे हमने बताया कि हीराकुड है, हीराकुड डैम खुला, सो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई वहां पर। बहुत सारे इंजीनियर्स आके रहने लगे। अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्टेड टू कम एंड लिव देयर। सो ऑल ऑफ अ सडन, फ्रॉम अ स्लीपी विलेज, स्लीपी टाउन, इट बिकेम बसलिंग एरिया। ओके, सो उसके लिए जो है ये टाउनशिप जो है, ये क्या करता है? टाउनशिप ये बेसिकली आपका एक ऐसा यूनिट है विच इज मैनेज्ड बाय, established by a large enterprise for providing amenities to their workforce। अब जैसे आप किसी उसमें काम कर रहे हैं, एल्यूमिनियम कंपनी में काम कर रहे हैं, एल्यूमिनियम कंपनी में काम कर रहे हैं और एल्यूमिनियम माइन के बगल में रह रहे हैं, तो क्या वहां फैमिली आप रख सकते हैं जब तक आपको प्रॉपर सर्विसेज ना मिले? तो इसीलिए जो है ये टाउनशिप्स बनाए जाते हैं कि आप बेसिकली अपने फैमिली को रख सकें, एंड इंजीनियर्स और वर्कर्स जो हैं दे कैन लिव टुगेदर एंड लिव विद देयर फैमिली। जनरली केंद्रीय विद्यालय वगैरह अंदर खुल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इवन शॉपिंग सेंटर्स खुल जाते हैं, इस लेवल का स्केल आ जाता है कभी कभार। ओके, एंड इट इज मैनेज बाय अ टाउन एडमिनिस्ट्रेटर, टिपिकली विदाउट इलेक्टेड मेंबर्स। तो जनरली इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते टाउनशिप में। पोर्ट ट्रस्ट, इट मैनेजेस द पोर्ट एरियाज एंड प्रोवाइड सिविक कम्युनिटीज। ओके, तो पोर्ट ट्रस्ट होता क्या है? तो बेसिकली कोस्टल एरियाज में जो है ये आपको मिलेगा पोर्ट ट्रस्ट, और यहाँ पर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, विच इज एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो पोर्ट ट्रस्ट है क्या? पोर्ट ट्रस्ट जो है आपका, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज व्हाट? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये जो पोर्ट ट्रस्ट है, ये सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ खुला था? 1870 में कैलकाटा में खुला था। ओके, ऑलराइट। और ये इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनैक्ट करती है। जो ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट है 1963 का, इट वाज इनैक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, और यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर और गवर्नेंस कैसे होता है? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ शिपिंग इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज होते हैं हु आर रिप्रेजेंटिंग द शिप ओनर्स एंड ऑपरेटर्स, एंड देयर आर सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लेबर यूनियन ऑफ द पोर्ट, बिकॉज
आपको पता है ना, पोर्ट जो है, ओके, पोर्ट जो है वहां पर बहुत लेबर इंटेंसिव काम रहता है, शिप बिल्डिंग इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव वर्क। तो वहां यूनियन के जो लीडर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोर्ट ट्रस्ट एरिया। सो एक मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट 1963 करके आया था, ओके, ऑलराइट। और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओवर राइडिंग पावर होता है, और द सेंट्रल गवर्नमेंट दे कैन ओवर राइड एंड दे कैन मेक डिसीजंस, ओके। एग्जाम्पल क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, नवी मुंबई, ओके। देन ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट। सो ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम क्या है? इट वाज चेंज्ड बेस्ड ऑन ए हीरो ऑफ द स्वराज मूवमेंट, हीरो ऑफ द स्वराज मूवमेंट, ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट। याद करिए, उन्होंने स्वदेशी नेविगेशन शिपिंग कॉरपोरेशन स्टार्ट किया था, है? वियो चिदम्बरम, याद है? वियो चिदम्बरम पिल्लई, यस। तो उनके नाम पे कर दिया गया है, वियो चिदम्बरम पिल्लई जो है उनके नाम पे कर दिया गया है ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, ऑलराइट। एंड वियो चिदम्बरम जो पोर्ट है, वो इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट है विच हैज स्टार्टेड द डीकार्बोनाइजेशन प्रोजेक्ट। तो ये मे बी करंट अफेयर्स में आ सकता है कि डीकार्बोनाइजेशन प्रोजेक्ट जो है, ये किसने स्टार्ट किया है? ये आपका वियो चिदम्बरम और द ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट। यस, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी चलाया था वियो चिदम्बरम पिल्लई ने 1906 में, 7 में, सॉरी, याद होगा आपको तो। स्पेशल पर्पस एजेंसी, so it undertakes specific activities or functions like urban development, water supply, housing, pollution control, etc. और ये जो है स्पेशल पर्पस एजेंसी, आपको याद होगा हमने बात की थी कि स्पेशल पर्पस एजेंसी का काम क्या होता है। कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी है, ओके, उसमें आप वाटर सप्लाई ले लें, उसमें आप हाउसिंग ले लें, उसमें आप पोल्यूशन कंट्रोल ले लें, या उसमें आप नॉर्मल अर्बन डेवलपमेंट ले लें, तो वहां पर स्पेशल पर्पस एजेंसी का काम होता है। और ये सिर्फ स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए होती है, इसीलिए नाम है इसका स्पेशल पर्पस एजेंसी। एंड दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या तो ये स्टेट गवर्नमेंट इनको एस्टैब्लिश करेगी, या इनको सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एस्टैब्लिशिंग इट। और इनका काम ही है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को इनको परफॉर्म करना है, दैट्स इट। और ये जो है बेसिकली दे विल बी अंडर द परव्यू ऑफ, they will be under the purview of municipal bodies, but they will operate independently, okay, all right। इनका गवर्नेंस ऑटोनोमस होगा, बट ओवरऑल दे विल बी अंडर द म्युनिसिपल बॉडी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर जो महाराष्ट्र से है उनको याद होगा, सिडको के बारे में सुना होगा आपने, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके। तो सिडको जो है दैट इज अ स्पेशल पर्पस एजेंसी। उसके साथ साथ, ओके, उसके साथ साथ ये दिल्ली जल बोर्ड कैन बी एन एग्जांपल, गुड एग्जांपल, ओके। मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज जो है, दे आर मैनेज थ्रू थ्री डिफरेंट सिस्टम। एक सेपरेट पर्सनल सिस्टम होता है, ईच लोकल बॉडी अपॉइंट्स, एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल इट्स ओन पर्सनल इंडिपेंडेंटली। सो जो सफाई कर्मचारी होते हैं आपके, जो आप सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो घर के बाहर जो सफाई करते रहते हैं, वो किसके मेंबर्स होते हैं? वो म्यूनिसिपैलिटीज के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज उनको जो है रिक्रूट करती है, ओके। वो म्यूनिसिपैलिटीज के पेरोल पे होते हैं। कभी सुना है ये जो सफाई कर्मचारी है, उनकी सैलरी रुक गई? सफाई कर्मचारी की सैलरी रुक गई, हड़ताल, 3 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन है। आई एम नॉट श्योर आपके तरफ अगर होता है कि नहीं, बट इन इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, स्पेशली इन यूपी वगैरह में बहुत ऐसा आपको देखने को मिलता है, राजस्थान में बहुत ऐसा देखने को मिलता है कि सफाई कर्मचारी, दे बेसिकली दे गो ऑन स्ट्राइक्स, ओके। एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज म्यूनिसिपैलिटीज के पास इनफ पैसे नहीं है, ओके। म्यूनिसिपैलिटीज के पास इनफ पैसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट दैट यू कैन राइट, that the lack of financial autonomy for municipality leads to the breakdown of the personnel system, and leading to delays in the salary disbursement, okay।
So personnel are not transferable to other local bodies, and it upholds the principle of local autonomy and fosters undivided loyalty. मतलब अगर आपने किसी सफाई कर्मचारी को रिक्रूट किया फॉर म्युनिसिपैलिटी, सो ही कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एज अ सफाई कर्मचारी to some other agency or to some other government department. Okay. Then there is a unified personnel system. And in this system, the state government appoints, administers, and controls the municipal personnel. First में क्या था? Separate personnel system में जो आदमी थे या जो personnels थे, they were recruited by the municipality and they were under the municipal control. Whereas in the unified personnel system, these people, they were uh, included by the state government. They were inducted by the state government and they can be transferred from one state service to other. पहले क्या हो सकता है कि आपको जो है म्युनिसिपैलिटी में रखे फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दे, ठीक है. एंड दिस इज प्रेवलेंट इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान. एंड देन यू हैव इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम. म्युनिसिपल पर्सनल एंड स्टेट गवर्नमेंट पर्सनल, दे बिलोंग टू द सेम सर्विस अंडर दिस सिस्टम. एंड म्युनिसिपल पर्सनल आर मेंबर्स ऑफ द स्टेट सर्विस. मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं वो म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स नहीं हैं, दे आर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. म्युनिसिपैलिटी के टीचर्स जो हैं म्युनिसिपैलिटी रिक्रूट नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट के टीचर्स है. स्टेट गवर्नमेंट हर म्युनिसिपैलिटी को टीचर्स एक पूल से प्रोवाइड करती है. ओके. And they are transferable not only between local bodies but also between different departments of the state government. Okay. And it is found in Odisha, Bihar, Karnataka, Punjab, etc. National level training institution for municipal personnel. क्या ये क्वेश्चन आपको कुछ याद है? इससे इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था बट फॉर अर्बन प्लानिंग. NIUA आया था 2022 में. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं. ये इस टाइप के क्वेश्चंस को डिसमिस मत कीजिएगा. एनीथिंग विच इज गिवन इन द हैंड आउट unless specifically told it is not important will be important for you. Then we have All India Institute of Local Self-Government, which is in Mumbai. It was established in 1927. It is a private registered society. UPSC asks all these questions also, that the NIUA is under which ministry as XYZ. Okay. Then Center for Urban and Environmental Studies. So it was founded in 1967 and based on the recommendation of the Nuruddin Ahmed Committee on Training of Municipal Employees. तो ये important है. Center for Urban and Environmental Studies. Then you have regional centers of the Center for Urban and Environmental Studies in Calcutta, Lucknow, Hyderabad and Mumbai. Then you have NIUA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स. ये 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था. सो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1976. अच्छा, ये एक चीज समझिएगा कि आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, बट क्या वो सही में मिलेगा? इन द सेंस कि क्या वो पहले से था वहां पर? नहीं. जनरली क्या होता है, आफ्टर प्रीलिम्स हैपेंस, मेनी पब्लिशर दे वेरी स्नीकीली दे ऐड इट इन देयर बुक्स और एक नया रिवाइज्ड एडिशन करके पब्लिश कर देते. फिर जब आप वो बुक उठाते हैं, देन यू स्टार्ट कर्सिंग योर सेल्फ कि अरे इसमें था, मैंने सही से नहीं पढ़ा. बट इस चीज को देख लीजिएगा कि क्या वो अगर 2022 में पूछा गया है तो द रियल टेस्ट ऑफ दैट थिंग विल बी कि 2021 के एडिशन में था कि नहीं. 2023 के एडिशन में तो सभी डाल लेंगे. ओके. अभी जैसे एक क्वेश्चन था ना वो चंगेज खान वाला, कि क्या चंगेज खान आया था, ख्वारिज्म शाह एंड इल्तुतमिश ने मना कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने ही हैड द बैटल ऑफ किली. ऑल दीज थिंग्स वे आर नॉट डिस्कस्ड अर्लियर. आज के डेट में जितने भी किताबें हैं मेडिवल हिस्ट्री की, सब में ये दिया हुआ है. ओके. सो प्लीज सी दिस वेदर मटेरियल इज गुड, नॉट बेस्ड ऑन वेदर इट इज गिवन राइट नाउ, बट उसके पुराना वाला जो है, पुराना एडिशन में दिया था कि नहीं. Then Human Settlement Management Institute, it was founded in 1985. तो ये सारे institutes important है for the simple fact that NIUA was asked in 2022. Okay. Yes. Spectrum, I remember when I was in college back in 2020-19, it used to be very thin book. बहुत बहुत पतली किताब होती थी, इसको कहीं भी हाथ में आप कैरी कर सकते थे.
आज के डेट में स्पेक्ट्रम को आप नहीं कैरी कर सकते।